कोर्ट में जो एक डिसीजन था 1 सितंबर का, उस पे हमने सारे शिक्षकों के तरफ से जो रिव्यू पिटिशन डाले थे, उन रिव्यू पिटिशंस का सुनवाई था 2 बजे। इस हियरिंग स्पेशल इसलिए था कि আপনারা অনেকেই অবগত, গতকাল অর্থাৎ 13ই মে 2026 তারিখে সুপ্রিম কোর্টের শিক্ষকদের টেট পরীক্ষা সংক্রান্ত একটি বহু প্রতীক্ষিত রিভিউ পিটিশনের মৌখিক শুনানি সম্পন্ন হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় 1 ঘন্টা 50 মিনিট ধরে চলা এই গুরুত্বপূর্ণ শুনানিতে পশ্চিমবঙ্গ সহ তামিলনাড়ু, মেঘালয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের আইনজীবীরা কর্মরত বা ইন সার্ভিস শিক্ষকদের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। বিশেষ করে রেট্রোস্পেক্টিভ এফেক্ট এবং এনসিটি এর 2010, 11 এবং 2017 সালের নিয়মাবলীগুলির বিষয়গুলি দেশের সর্বোচ্চ আদালতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত করা হয়। গতকাল সুপ্রিম কোর্টের লক্ষ লক্ষ শিক্ষকের চাকরি বাতিলের আশঙ্কার মাঝে বিভিন্ন রাজ্য এবং সংগঠনের আইনজীবীরা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিচারপতিদের সামনে তুলে ধরেন। মেঘালয় এবং তামিলনাড়ুর যেসব আইনজীবীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এই দুই রাজ্যের আইনজীবীরা স্পষ্টভাবে জানান যে বাধ্যতামূলক অবসরের নির্দেশ কার্যকর হলে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে। তাই তারা শিক্ষকদের যোগ্যতা মান অর্জনের জন্য আরও 4 বছর অতিরিক্ত সময় চেয়েছেন। এবং পশ্চিমবঙ্গের যেসব আইনজীবীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় 2014 সালে টেট পরীক্ষা হওয়ার প্রায় দীর্ঘ 7 বছর পর 2021 সালে পুনরায় টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, যা রাজ্যের জন্য একটি বড় সমস্যা ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষকদের জন্য অন্তত আরও 4 বছর সময় চেয়েছেন এবং প্রতি 6 মাস অন্তর টেট পরীক্ষা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। রেট্রোস্পেক্টিভ এফেক্টের ফলে লক্ষাধিক শিক্ষকদের চাকরি চলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর ফলে শিক্ষক শিক্ষিকাদের জীবিকা কিভাবে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা নিয়ে আইনজীবীরা আবেগপূর্ণ সওয়াল করেছেন। এবং তার সাথে অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গের এই সংগঠনের আইনজীবীদের পক্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ানো নর্মাল সেকশন এর বিষয়টি আদালতে বিশেষ দৃষ্টিগোচরে আনেন। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বেঞ্চের অন্য বিচারপতিরা এই মামলার অত্যন্ত কড়া এবং আপোষহীন অবস্থান বজায় রাখেন। বিচারপতিরা রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্টের উপর সর্বোচ্চ জোর দেন। তারা স্পষ্টভাবে জানান, শিশুদের বাধ্যতামূলক এবং গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষকদের যোগ্যতার মান বা ডিগ্রি উন্নত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এবং আদালত ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 2010 সালের 23শে আগস্ট এনসিটি যখন নিয়ম সংশোধন করে কর্মরত শিক্ষকদের যোগ্যতার মান অর্জনের জন্য 5 বছর অতিরিক্ত সময় দিয়েছিল, তখন কেন তা কাজে লাগানো হয়নি? পরবর্তীতে 2017 সালে এইচআরডি মিনিস্ট্রি থেকে 1 এপ্রিল 2019 সালে এর মধ্যে টেট পাস করার রিমাইন্ডার দেওয়া সত্ত্বেও তারা কেন যোগ্যতার মান অর্জন করতে পারেনি তা নিয়ে বিচারপতিরা প্রশ্ন তুলেন। এবং বিচারপতিরা মন্তব্য করেন, যদি 2010 বা 2017 সালে এতই সমস্যা ছিল, তবে রাজ্যগুলি বা শিক্ষকেরা কেন সেই সময়ে মামলা করে আদালতের দ্বারস্থ হননি? এবং আরও জানায়, 6 মাস অন্তর টেট নেওয়ার দাবির প্রেক্ষিতে আদালত পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন, টেট কন্ডাক্ট করার সম্পূর্ণ দায়িত্বগুলি হলো রাজ্যের। সুপ্রিম কোর্ট এর জন্য রাজ্যকে কোনোরকম কোনো বাধ্য করতে পারবে না। এই সব বিভিন্ন রূপ বিচারপতিদের কড়া পর্যবেক্ষণ এবং মন্তব্য তারা প্রকাশ করেন। কালকের শুনানি সুপ্রিম কোর্টে কার্যতালিকায় 301 নম্বর আইটেমে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা প্রায় 1 ঘন্টা 50 মিনিট ধরে আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর হঠাৎ করে 302 নম্বর আইটেমের কাজ শুরু হয়ে যায়। ফলে সমস্ত আইনজীবীদের বক্তব্য শেষ হয়েছে কিনা, পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হলো কিনা, নাকি রায় সংক্ষিপ্ত রাখা হলো, তা পুরোপুরি এখনোভাবে প্রশ্ন হয়নি। তবে আপনারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পরবর্তী এই টেট বিষয়ক যেসব আপডেটগুলি আসতে চলেছে, সেই আপডেটগুলি এলেই আমরা এই চ্যানেলে ভিডিওর মাধ্যমে সেই আপডেট আপনাদের কাছে তুলে ধরব। এই টেট সংক্রান্ত মামলার পর্যবেক্ষণ করে বিশিষ্ট আইনজীবীরা তারা কি বক্তব্য রেখেছেন, সেই বক্তব্য আপনাদের কাছে তুলে ধরব। विक्रम हेगड़े जी आपको बताएंगे कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट नंबर 8 में देश के 25 लाख टेट प्रभावित शिक्षक साथियों के भाग्य के फैसले का जो दिन था उसमें क्या हुआ वो आपको बता रहे हैं हमारे आज जो है 2 बजे आज कोर्ट में जो एक डिसीजन था 1 सितंबर का, उस पे हमने सारे शिक्षकों के तरफ से जो रिव्यू पिटिशन डाले थे, उन रिव्यू पिटिशंस का सुनवाई था 2 बजे। इस हियरिंग
स्पेशल इसलिए था कि ये ओपन कोर्ट हियरिंग था। सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटिशन होते हैं ये आमतौर पे ये 3 चेम्बर सुनाए जाते हैं, कोई वकील नहीं होते हैं, बस वो रिव्यू पिटिशन देख के या पिटिशन में जो ग्राउंड, पर इस पिटिशन में कोर्ट को ये लगा कि इसमें कुछ दम है या इन पिटिशंस में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको ओपन कोर्ट में डिटेल में कंसिडर किया जाए। इस कारण से उन्होंने ओपन कोर्ट हियरिंग के लिए इन सारे पिटिशंस को लिस्ट किया। जब ये लिस्ट हुए थे, इस देश के सारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो शिक्षकों की तरफ से पेश हुए थे। स्टेट ऑफ यूपी ने भी एक रिव्यू पिटिशन दाखिल किया था, उनके तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बैनर्जी थे और अभिषेक मनु सिंघवी जी थे, अमित कुमार सिंह एंड अदर्स नाम के पिटिशन से, और मुकुल रोहटगी जी, सलमान खुर्शीद साहब और बाकी ऐसे ही सीनियर एडवोकेट्स बहुत सारे शिक्षकों की तरफ से पेश हुए थे और आर्ग्यूमेंट्स उनके एड्रेस किए थे। इन आर्ग्यूमेंट्स में ये था कि जो सेक्शन 23 आरटीई एक्ट है, इसका जो इंटरप्रिटेशन है, इसका जो अर्थ दिया गया है सितंबर 1 तारीख का जजमेंट में, उसमें ऐसे समझा गया है कि जो प्रोवाइजो है सेक्शन 23 में, उसमें ये बताया गया है कि 2017 में जो अमेंडमेंट आया उसमें ये कहते हैं कि 2015 तक जो भी टीचर्स है उनको 4 साल में टेट क्वालिफिकेशन लेना चाहिए, चाहे वो पहले ही नियुक्त हुए हो या जब भी नियुक्त हो। पर इसका जो सीनियर एडवोकेट्स है उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है, ये ऐसे उन्होंने दोहराया है कि 2010 तक जो नियुक्त हुए हैं उन पे कोई टेट का अनिवार्यता लागू नहीं था और 2010 से 2015 तक जो नियुक्त हुए हैं उनके लिए ही बनता है कि वो 2017 से 4 साल बाद इस टेट क्वालिफिकेशन को क्लियर करें। दूसरा हमने ये भी दिखाया था कि एनसीटीई एक्ट जो 2012 में अमेंड हुआ, उस 2012 के अमेंडमेंट में भी यही था कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एनसीटीई के द्वारा दिया जा रहा है वो 2012 में जो नियुक्त होते हैं और 2012 के बाद जो नियुक्त होते हैं उन्हीं पे लागू है और ना कि 2012 से पहले नियुक्त होने वालों पे लागू। और अगर फिर भी करना ही हो तो बस उन्हीं पे किया जा सकता है। ये सिंघवी साहब ने ये पॉइंट रखा कि अगर करना ही हो कि 2012 का जो अमेंडमेंट आता है और 2017 का जो अमेंडमेंट आता है इसको लागू करना ही हो तो बस उन्हीं पे किया जा सकता है जो 2010 और 2012 के बीच में जो नियुक्त होते हैं या 2010 से 2017 तक जो नियुक्त होते हैं उन्हीं पे किया जा सकता है। ये सारे अंशों को कोर्ट ने नोट कर लिया है, उन्होंने उनके परिगणना में ले लिया है और इन सबको वो कंसिडर करके सोच समझ के जजमेंट देंगे। अभी जजमेंट रिजर्व किया गया है, जब वो जजमेंट आएगा तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या हो सकता है। और इस बीच में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आए हैं वेस्ट बंगाल के तरफ से और कुछ और स्टेट्स के तरफ से कि जो 2 साल का जो टाइम दिया हुआ है वो टेट परीक्षा कंडक्ट करने के लिए उनको थोड़ा और टाइम चाहिए, तो उन्होंने मांगा है कि 2 साल से ये टाइम को 4 साल में एक्सटेंड किया जाए। ये कुछ स्टेट्स के तरफ से आए हैं, इस पॉइंट को भी कोर्ट ने कंसिडर कर लिया। बहस के बाद जो थोड़ा सा शिक्षकों में नकारात्मकता है उसको देखकर माननीय एमएलसी साहब की तरफ पूरे देश के लाखों लाख शिक्षकों की निगाहें हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने आशीर्वचन से आप देश के लाखों लाख शिक्षकों को जरूर आप आशीर्वचन से अभिषेचित करें। देखें, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय सिंघवी साहब ने कोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया कि 2010 के पहले जो टीचर नियुक्त हैं उस समय आरटी एक्ट अस्तित्व में नहीं था, वे इस फैसले से आच्छादित नहीं होते हैं, उन्हें टेट अनिवार्यता से बाहर रखा जाए। कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आरटी एक्ट के अस्तित्व में आने से पहले जो हमारे शिक्षक साथी हैं उन्हें टेट अनिवार्यता से छूट मिलेगी। कोर्ट में सारे तथ्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने, आदरणीय सिंघवी साहब ने, आदरणीय मुकुल रोहतगी साहब ने, आदरणीय सलमान खुर्शीद ने और सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने रखा है। यूपी के एडिशनल एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल विक्रम बनर्जी ने रखा है।
मुझे पूरा विश्वास है कि टीईटी एक्ट अस्तित्व में आने से पहले जो हमारे शिक्षक साथी प्रचलित नियमों के तहत नियुक्त हुए थे, उन्हें टेट अनिवार्यता से छूट अवश्य मिलेगी। तो साथियों, अभी आप